टू एक्सीलेटर क्लासेस। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਆ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ, ਥਰਡ ਲਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਨਿਯਮ ਆ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਵਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਵਾ, ਥਰਡ ਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ। ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੀਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾ ਵਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦੀ, ਫਸਟ ਲਾ ਦੀ। ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ Q ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ Q ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਹੀਟ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਲੀਅਮ, ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ? ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟ ਆ ਸਪਲਾਈਡ ਹੀਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਰਕ ਕਰਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
कुछ थर्मोडायनमिक सिस्टम इदां दे हुंदे आ जिहदे विच सिर्फ टैंपरेचर ही चेंज हो रहा, स्टेट चेंज नहीं हो रही। सो इस तरीके नाल थर्मोडायनमिक सिस्टम जिहड़े आ वो अपणियां वक्खरियां वक्खरियां विशेषतावां उन्हां दियां हो सकदियां वा। फॉर एग्जाम्पल जेकर असीं गैस की गल करिए, फॉर गैस के केस दे विच आपां कहिए कि सप्लाइड हीट असीं क्यू जिहड़ी आ सप्लाई हीट दित्ती। हुण गैस के केस दे विच स्टेट ते चेंज होनी नहीं आ, होना की आ टैंपरेचर ने चेंज होना, क्योंकि गैस अपनी स्टेट चेंज करके जाएगी कित्थे, क्योंकि ये तो उपर तो कोई स्टेट है नहीं अजे। ठीक आ। सो गैस के केस दे विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब की आ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब आ कि टैंपरेचर का चेंज होना। तो सैकेंड वर्क डन तो हो ही सकता। वर्क डन असी लास्ट इक्वेशन दे विच पढ़िया कि वर्क डन की इक्वेशन की हुंदी आ, वर्क डन की इक्वेशन हुंदी आ P डेल्टा V, क्योंकि असी यह चीज़ प्रूव की आ कि वर्क की हुंदा वा, वर्क हुंदा है बेसिकली फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। तो आम तौर पर थर्मोडायनमिक्स ते काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दे विच आपां फोर्स नूं हमेशा प्रैशर की टर्म्स दे विच लिखदे आ इस तरीके नाल। हुण एरिया इंटू डिस्टेंस एक ही बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो जे चेंज छोटी आ जिवें मैं कहा सी, फिर असीं इत्थे DW भी लिख सकते हैं, PDV भी लिख सकते हैं, आपां इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, इस ट्राईएंगल का साइन पा के इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं। सो ये साडे एक लिखण दे तरीके आ। असीं इत्थे क्या कि हीट दित्ती आ किसी गैस सैंपल नूं क्यू, उहदा टैंपरेचर चेंज होया प्लस उहदे विच की होया वर्क होया। सो साडा निज़म जिहड़ा वा, जेकर असीं इसे निज़म नूं सिंपल फॉर्म च लिखना होवे जां डिफरेंशियल फॉर्म च लिखना होवे तो मैं कहांगा DQ। जदों मैं DQ लिखिया ना, इहदा मतलब आ डिफरेंशियल रूप विच तुसीं हीट दित्ती आ, मतलब समॉल अमाउंट विच हीट दित्ती आ, ते इत्थे DT लिख लैंदे आ। हुण टैंपरेचर चेंज होया, डिफरेंशियल चेंज होई, प्लस PDV। आपां उपरली इक्वेशन नूं डिफरेंशियल रूप दे विच भी लिख सकते हैं। हुण देखो, मान लो एक थर्मोडायनमिक सिस्टम नूं मैं 100 जूल हीट दित्ती, साडी सप्लाइड हीट कितनी आ 100 जूल। आपां कहंदे आ कि मान लो इहदे विच्चों जिहड़ी 20 जूल आ उहने की कीता, टैंपरेचर नूं चेंज कीता। तो जे 20 जूल ने टैंपरेचर चेंज किया, मतलब डेल्टा T वास्ते कौन रिस्पोंसिबल आ 20 जूल, तो जी बाकी रह गई 80 जूल, फिर उन्हें की किया होगा, उन्हें वर्क कराया होएगा। इहदा मतलब जिहड़ा वर्क होया है वो बाकी एनर्जी दे नाल होया है। तो असी इहदे विच ये चीज़ देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा नूं ना पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ऊर्जा नूं सिर्फ एक रूप तो दूसरे रूप विच बदल सकते हैं, वो होल्ड करेगा। इहदा मतलब हुण जिन्नी एनर्जी ने टैंपरेचर चेंज किया तो जिन्नी एनर्जी ने वर्क कराया, दोवां दा जिहड़ा सम आ वो की आ सप्लाइड दे बराबर तो होना ही होना। तो जेकर सप्लाइड दे बराबर आ, इहदा मतलब लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की आ पूरी तरह होल्ड कर रहा वा। सो थर्मोडायनमिक्स दा पहला निज़म जिहड़ा वा वो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी नूं पूरी तरह होल्ड करदा वा। ते बेसिकली सानूं दसदा की आ कि जिन्नी तुसीं हीट दे रहे जो वो की आ हीट वंडी जांदी आ स्टेट चेंज करन वास्ते जां टैंपरेचर चेंज करन वास्ते प्लस वर्क वास्ते। हुण कई केस इदां दे हो सकदे आ जिथे सारे दी सारी सप्लाइड हीट की आ सिर्फ टैंपरेचर ही चेंज कर रही आ, जां स्टेट चेंज कर रही आ, जां वर्क करवा रही आ। सो ये जड़ियाँ इंडिविजुअल जड़ियाँ वेरीएशनस आ वो हर एक थर्मोडायनमिक सिस्टम दे विच हो सकदियां वा। सो साडा पहला निज़म की बनिया कि जिन्नी हीट तुसी दे रहे जो वो हीट जिहड़ी आ वो कुछ ना कुछ थर्मोडायनमिक सिस्टम दे विच उहदी ड्यूटी आ, चाहे टैंपरेचर चेंज करना ते चाहे कि उहदा वर्क करवाउणा। ते असीं इहदे विच कहने आ, जदों असीं कहने आ कि गैस के केस दे विच चेंज इन टैंपरेचर, मैं इस इक्वेशन नूं इदां भी लिख सकदा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मैं डेल्टा T की जगह पर डेल्टा U लिखिया क्योंकि जिहड़ी इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी नूं U दे नाल रिप्रजेंट किया जाता। ते गैस के केस दे विच
इंटरनल एनर्जी का चेंज होना मतलब टैंपरेचर चेंज होना। हुण टैंपरेचर की चेंज आ, चाहे मैं टैंपरेचर की चेंज लिखा चाहे मैं डेल्टा यू लिख ला, कोई फर्क नहीं आ। तो इस इक्वेशन तो ठीक है, इस इक्वेशन तो आप की कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी। तो आप जे एक पता करना हो कि सिस्टम दे विच इंटरनल एनर्जी कितनी आ, तो आप इदा लिख लेंगे मैथेमैटिकली डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ये साडियां की आ, ये साडियां थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म दियां मैथेमैटिकल स्टेटमेंट्स आ। सो ये साडा जिहड़ा वा थर्मोडायनमिक्स का पहला निज़म आ। इस तो बाद विच असीं थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म की एप्लीकेशन देखते हैं तो नाल ही इहदी असीं की आ लिमिटेशनस पढ़ते हैं। जेकर असीं थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म की लिमिटेशन की गल करिए तो लिमिटेशन दे विच साडे कोलों सब तो पहली लिमिटेशन ये आंदी आ कि ये डायरैक्शन ऑफ हीट के बारे सानू नहीं दसदा कि हीट किधरों किधर नूं जाएगी। हुण देखो पहले निज़म दे विच ये लिमिटेशन आई तां ही करके ते असीं जीरोथ ला नूं जिहड़ा वा वो पैदा कीता, जीरोथ ला बनाया, क्योंकि पहले निज़म दे विच सानू ये नहीं दस्सिया गया कि हीट ने किधरों किधर नूं ट्रांसफर होना वा। हुण जदों ये नहीं दस्सिया गया पहले निज़म दे विच तो सानू महसूस होया कि थर्मोडायनमिक्स के सानू सब तो पहला तो ये दसना चाहिए कि हीट ने किधरों किधर नूं ट्रांसफर होना। इस करके असीं पहले निज़म नूं नहीं छेड़िया तो ये की आ जीरोथ ला जिहड़ा वा वो क्रिएट करता। तो जीरोथ ला दे विच असीं स्टडी कीता कि हीट की डायरैक्शन की होएगी। सो जिवें असीं लिमिटेशनस के बारे गल कर रहे हैं तो पहली लिमिटेशन साडे कोलों ये आई कि ये निज़म सानू ये नहीं दसदा कि हीट जिहड़ी आ उहदी डायरैक्शन किधर नूं आ, उहदा फ्लो किधर नूं आ। ते दूसरी लिमिटेशन की गल करिए, दूसरी लिमिटेशन साडे कोलों पहले निज़म की ये आई कि हाउ मच गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये भी नहीं सानू दसदा कि हीट दे विचों कितनी क्वांटिटी जिहड़ी आ वो वर्क दे विच कन्वर्ट होएगी ते कितनी क्वांटिटी जिहड़ी आ वो साडी स्टेट चेंज करन जां इंटरनल एनर्जी चेंज करन दे विच यूज़ होएगी। तो जेकर असीं तीसरी लिमिटेशन की गल करिए तो तीसरी लिमिटेशन साडे कोलों आएगी कि इट डज नॉट टेल्स अबाउट कंडीशनस, कि वो किहड़ियां कंडीशनस आ जिन्हां दे विच जिहड़ी हीट जिहड़ी आ वो वर्क दे विच कन्वर्ट हुंदी आ। सो साडे कोलों पहले निज़म दीयां जिहड़ियां वा तीन लिमिटेशनस आईयां। पहली लिमिटेशन आई साडे कोलों डायरैक्शन दी कि सानू डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट सानू ये निज़म नहीं दसदा। सानू ये नहीं दसदा कि हाउ मच गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। सानू ये भी नहीं दसदा, असी कह सकते हैं कि इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये साडियां तीन की आ मेन लिमिटेशनस आ इस थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म दियां। सो हुण असीं देखते हैं थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डिस्कस करन तो पहला असीं गल कर लैंदे आ स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी की। जिवें कि असीं पढ़िया वा स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी की आ, एक यूनिट मास नूं 1 डिग्री राइज करन लई जिन्नी हीट चाहिए आ, दैट हीट इज़ नोन एज स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी। तो इसे स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी दे विच असी दो डेफिनेशनस बनाइया हुई वा। साडे कोलों एक डेफिनेशन आ मोलर स्पैसीफिक हीट। ये मोलर स्पैसीफिक हीट दो तरह की आ, असी कहने कॉन्सटेंट वॉल्यूम ते कॉन्सटेंट प्रैशर ते। सो कॉन्सटेंट वॉल्यूम पे मतलब जदों असी किसी थर्मोडायनमिक सिस्टम नूं हीट दिंदे आ असी उहदा वॉल्यूम नहीं एक्सपैंड होने देना, शर्त लगाती कि वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं होने देना तो 1 डिग्री टैंपरेचर राइज करना वा जिन्नी हीट चाहिए आ, दैट हीट इज़ नोन एज स्पैसीफिक हीट एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। हुण देखो जेकर आपां किसी थर्मोडायनमिक सिस्टम दे विच प्रैशर नूं चेंज नहीं होने देना, जेकर असीं कहने कि प्रैशर नूं चेंज नहीं होने देना, फिर अमाउंट ऑफ हीट
जिन्नी हीट सानू चाहिदी आ 1 डिग्री टैंपरेचर राइज करने वास्ते उन्होंने असी की बोलांगे, उन्होंने बोलांगे स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर। तो असी इस स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी की जिहड़ी आ वो डेफिनेशन या इक्वेशन बनाई सी MC डेल्टा T। ये साडे कोलों लास्ट इक्वेशन बनी सी हीट की कह लो या स्पैसिफिक हीट की कह लो। तो ये ही असी स्पैसिफिक हीट C नू जिहड़ा वा वो अलग करते हैं। C बनी Q इज इक्वल टू M डेल्टा T। तो जेकर असी शर्त लगा लीए कि मास इज 1 यूनिट, मास 1 यूनिट आ, C की बनया Q डेल्टा T। क्योंकि जदों भी असी स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी की गल करते हैं ना उदों असी मास नू बाउंड कर लेने, असी कहने कि मास 1 यूनिट आ। तो जेकर असी लिक्विड ते गैसेस की गल करते हैं ना उत्थे असी कह देंगे कि ये जिहड़ा सबसटेंस आ इहदी क्वांटिटी की आ 1 मोल आ। असी 1 मोल यूज़ कर लेंगे M की जगह ते असी 1 मोल यूज़ कर लेंगे। सो गैसेस ते लिक्विड के केस दे विच असी 1 मोल सबसटेंस यूज़ किया तो उहदे हिसाब दे नाल ही असी डेफिनेशनस बनाईयां स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर ते स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। तो हुण गल करते हैं असी थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म की एप्लीकेशन ते। हुण जिवें साडे कोलों 2 क्वांटिटीज़ बन गई वा, एक क्वांटिटी आ CP ते एक क्वांटिटी आ CP। असी थर्मोडायनमिक्स दे पहले निज़म की एप्लीकेशन दे विच इन्हां दोनों क्वांटिटीज़ दे विच रिलेशन भी पता करांगे कि इन्हां दे विच आपस च की रिलेशन आ। हुण मान लो मेरे कोलों की आ एक सैंपल आ, पहला मैं इस सैंपल नू की करदा वां एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम हीट दिंदा वां। बाद में मैं की करना इसे सैंपल नू सेम क्वांटिटी सैंपल दी आ, इसी सैंपल नू एट कॉन्सटेंट प्रैशर हीट देनी आ। मतलब इको ही सैंपल आ, एक बारी असी इहदा वॉल्यूम जिहड़ा वा कॉन्सटेंट रखना वा, एक बारी प्रैशर कॉन्सटेंट रखना वा। हुण देखो थर्मोडायनमिक्स का पहला निज़म सानू की कहंदा कि जिन्नी तुसी हीट दोगे उस हीट ने की करना वा इंटरनल एनर्जी नू चेंज करना वा ते जां वर्क करवाना। हुण मैं कहना मान लो मेरे कोलों की आ 1 मोल गैस आ, सपोज कि मेरे कोलों की आ 1 मोल गैस आ, सपोज 1 मोल गैस। तो असी उन्होंने की कीता, जिवें मान लो इत्थे 1 मोल गैस आ, असी उन्होंने हीट दिती एट कॉन्सटेंट हीट सप्लाइड एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। जो असी कॉन्सटेंट वॉल्यूम के उपर हीट देवांगे, असी क्या मान लो हीट दिती DQ, हीट की इक्वेशन की आ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक आ, 1 मोल आ, असी 1 लिख लांगे, 1 कॉन्सटेंट वॉल्यूम DT। साडे कोलों पहली इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन कदों बनी जदों असी ये गल कहने आ कि मान लो एक सैंपल नू असी हीट सप्लाइड की ते उहदा टैंपरेचर जिहड़ा वा DT चेंज होया। मान लो उहदा टैंपरेचर DT चेंज होया, नो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टैंपरेचर DT। तो इक्वेशन की बनी DQ इज इक्वल टू CV DT। हुण जेकर असी गल करिए थर्मोडायनमिक्स के पहले निज़म की, अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम फर्स्ट ला की जो गल कर रहे हैं तो ये थर्मोडायनमिक्स का ही पहले निज़म की गल कर रहे हैं। थर्मोडायनमिक्स का पहला निज़म कहता कि जिन्नी तुसी हीट दिती उन्हें की कीता इंटरनल एनर्जी चेंज की ते जां की कीता वर्क कीता, ते वर्क का फार्मूला की आ PdV। पर असी क्या एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम जेकर वॉल्यूम कॉन्सटेंट आ तो इहदा मतलब यह जिहड़ा वर्क आ ये की आ 0 आ। कॉन्सटेंट वॉल्यूम ते असी किसी थर्मोडायनमिक सिस्टम नू हीट देवांगे तो वर्क होना ही नहीं। इहदा मतलब फिर की आ, फिर फर्स्ट ला ये कहंदा कि जिन्नी तुसी हीट दे रहे जो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है।
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰੀਏ। ਫਰੋਮ 1 ਐਂਡ 2, ਫਰੋਮ 1 ਐਂਡ 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 1 ਐਂਡ 2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ du is equal to cv dt। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਗਈ, 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੈਸ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਸੈਂਪਲ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਡ कह लो, हीटेड एट कांस्टेंट प्रैशर, कांस्टेंट प्रैशर। जेकर कांस्टेंट प्रैशर की गल करांगे तो साडे कोलों जिहड़ी मोलर स्पैसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रैशर की गल होएगी। मोलर स्पैसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रैशर, इक्वेशन की बनेगी, मोलर स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रैशर। इक्वेशन की बनेगी साडे कोलों, डी क्यू इज इक्वल टू, ऊपर की बनी सी जो कांस्टेंट वॉल्यूम सी, इक्वेशन तो यही रहेगी ना, क्योंकि साडे कोलों बेसिकली इक्वेशन की है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो जेकर 1 मोल आ, एम की जगह ते असीं की कर लांगे, 1 लिख लांगे, सी डेल्टा टी। तो डेल्टा नूं असीं डिफरेंशियल लिखिया होया वा, डी टी लिखिया होया वा, हीट नूं भी असीं डिफरेंशियल फॉर्म च लिखिया, डी लिखिया होया। हुण इधर देखते हैं इत्थे की आ कांस्टेंट प्रैशर, कांस्टेंट प्रैशर इक्वेशन की बनेगी सी पी डी टी। हुण नाल ही की करते हैं, हुण असीं कांस्टेंट प्रैशर ते अगेन थर्मोडायनेमिक्स का पहला निज़म लाउने आ। इत्थे भी की कीता सी, कांस्टेंट वॉल्यूम ते हीट दी इक्वेशन लिख ली, बाद विच थर्मोडायनेमिक्स का पहला निज़म लगा लिया तो सिंपलीफाई करता। हुण आपां उसे सैंपल दे उपर कांस्टेंट प्रैशर दे उपर हीट दी इक्वेशन लिख ली, तो फ्रॉम फर्स्ट ला हुण फिर फर्स्ट ला की गल करते हैं, फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहंदा सानू, कहंदा है कि डी क्यू जिन्नी हीट दोगे उन्हें 2 काम करने आ, जां ते इंटरनल एनर्जी चेंज करनी आ जां वर्क करना, पी डी वी। पहला की सी, पी डी वी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम आ, यह टर्म 0 होगी। पर हुण कांस्टेंट प्रैशर आ, यह टर्म 0 नहीं होएगी, इस करके यह टर्म जिहड़ी आ हुण अगे इक्वेशनस दे विच चलेगी। सो साडे कोलों की आ, यह 3 नंबर इक्वेशन सी, मैं इनू 4 नंबर लिख देना, इनू 5 नंबर लिख देना। हुण आपां की करदे आ, 4 ते 5 नू इकट्ठा करदे आ, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों नू इकट्ठा करो। जिवें इत्थे 1 एंड 2 नू कीता सी, साडे कोलों की बनेगी, डी के उदियां ही दोनों इक्वेशनस असी की लिखांगे, सी पी डी टी। जे ए पासे बराबर आ, इधरले भी बराबर होणगे, सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। साडे कोलों ए वाली इक्वेशन बनी, असी इहनूं कह दिंदे आ 6 नंबर। हुण देखो इक्को सैंपल नूं आपां कांस्टेंट वॉल्यूम ते कांस्टेंट प्रैशर दे उपर उहनूं की आ देख रहे हैं। हुण असीं की करदे आ, इस du दी वैल्यू जिहड़ी आ, ये जिहड़ी du दी वैल्यू आ असीं उपरों लैके आउंदे आ। उपर साडे कोलों ये du दी वैल्यू सानूं कित्थों मिलेगी, असीं du दी वैल्यू असीं इत्थों लैंदे आ, फ्रॉम 3 तो, 3 नंबर तो, फ्रॉम 3 जेकर 3 तो असी वैल्यू ऑफ du पुट फ्रॉम 3 वैल्यू ऑफ du मतलब सी पी डी टी इज इक्वल टू
CV dt प्लस PdV। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ du ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली जी वैल्यू आ वो कॉन्स्टेंट प्रैशर वाली वैल्यू च क्यों भरी, क्योंकि यह तो दो अलग अलग सिस्टम हो गए। देखो असी इत्थे की कर रहे हैं, असी इत्थे इक्को सिस्टम नूं कॉन्स्टेंट प्रैशर ते कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दे विच ट्रीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उहदे ते थर्मोडायनमिक्स ते निज़म लगा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਧਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ du ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਚੁੱਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ, Cp ਮਾਈਨਸ Cv dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P dV। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, पर असी इक्वेशनस नूं सिंपलीफाई उन्ना चिर तक करते रहने जिन्ना चिर तक इहदे विच कॉन्स्टेंट पैरामीटर नहीं आ जाते। मतलब ये इक्वेशनां अपने सौखे तो सौखे रूप विच नहीं आ जांदियां, मतलब इदां दे रूप दे विच आ जाण जिन्हां दियां वैल्यूज़ जिहदे विच वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट जिहड़ियां होण जां कॉन्स्टेंट पैरामीटर इंट्रोड्यूस होण। हुण देखो अब मैं की करदा, इनू सॉल्व करने वास्ते मैं गैस इक्वेशन लिखदा। मैं देखा कि वी नो गैस इक्वेशन साडे कोलों की आ, फॉर 1 मोल, जे आपां 1 मोल की गल कर लैंदे आ, फॉर 1 मोल 1 मोल की गैस इक्वेशन की कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT। अदरवाइज इत्थे की होना सी, NRT या μRT होना सी जिन्ने मोल हुंदे, ठीक आ। आपां 1 मोल वास्ते लिख ली क्योंकि आपां सारी गल 1 मोल वास्ते ही करते पे हैं। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ P ਡੈਲਟਾ dV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R dt। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਟੀ ਪਾ ਲਓ ਵੱਡੀ ਟੀ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। इस रूप में इत्थों मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, इत्थों ए वाली इक्वेशन किवें बनी, मैं मैथमैटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अदरवाइज जे आपां इत्थों इत्थे जाइए ना डिफरेंशियल रूप दे विच ते इहदी फिजिक्स जां केमिस्ट्री दे विच भी पूरी सेंस आ कि असीं जेकर टैंपरेचर नूं चेंज करदे आ ते वॉल्यूम चेंज हुंदा वा, कॉन्स्टेंट प्रैशर रहिंदा वा, R ते पहलां ही कॉन्स्टेंट आ, असीं इस तरीके नाल भी समझ लैंदे आ। हुण देखो इत्थों PdV की की वैल्यू आई, मान लो ये 8 नंबर, 8 नंबर दे विच PdV की वैल्यू की आई R dt। हुण 8 ते 7 नूं जेकर असीं इकट्ठा करिए फ्रॉम 7 एंड 8, 7 एंड 8 नूं तुसीं सिंपलीफाई करोगे तुहाडे कोलों बचेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R dt, कैंसल आउट हो जाएगा। ਹੁਣ देखो साढ़े कोलों एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन आ गया कि स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रैशर, स्पैसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जिहड़ा डिफरेंस आ, मतलब इक्को सैंपल दी तुसीं की आ साढ़े कोलों कोई गैस आ मान लो, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ Cp ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ Cv ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Cp ਚੋਂ Cv ਘਟਾ ਦਿਓ R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। R ਕੀ ਆ, ਗੈਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਇਲਸ ਦਾ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ Cp Cv ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ R ਕੀ ਆ, R एक पॉजिटिव वैल्यू आ, पॉजिटिव वैल्यू आ तो मतलब फिर Cp Cv नालों वड्डी होएगी। वैसे भी सानू वर्बली भी पता वा कि Cp Cv नालों वड्डी हुंदी आ, पर किन्नी वड्डी हुंदी आ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Cp - Cv = R ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੇਅਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਥ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਸਮਝਿਆ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਸਮਝਿਆ, ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Cp ਤੇ Cv ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਅਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।